Hello everyone. Topic of our today's session is unlocking SIF potential. For this, we have invited Mr. Nandik Malik, Head Equity and Hybrid SIFs, Axis AMC. Over to you, sir. Thank you so much, everyone, for being there on the call. My name is Nandik Malik. So I look after the SIF equity and the hybrid piece within Axis. Before this, I was a CIO at Avendus Capital Markets, and prior to that, I started the long short fund at ICICI Prudential. So thank you everyone for being there on the call. We will make a short SIF presentation, 15 minutes, 15-20 minutes, and then I can take some questions or if you have any concerns, we'll be happy to address that. So what are SIFs? SIFs in our framework is nothing but a better form of mutual funds. Why do we say that? Because if you look at mutual funds, you have daily liquidity, you have daily NAVs, you have equity or debt taxation, depending on what kind of fund it is, and then you have a fixed management fee. In our case, also in SIFs, we will broadly have same features. So what SEBI has done is SEBI has given three categories. SEBI has given equity SIF, debt SIF, and hybrid SIF, in which they have given further sub schemes. But then in that, the option to give daily liquidity or daily NAVs is in the hands of the concerned AMC. So, for example, Axis has decided that whatever funds we launch under equity or hybrid, we will be offering daily NAVs and daily liquidity. Daily liquidity means investor can come and go whenever they want. So there are some funds, for example, in category 3 AIF, in which inflow is once a, let's say, quarter or once a month, and outflow is also once a quarter or once in 6 months, or you lock in money for 6, 12, 18, 24 months. In our case, we will have nothing like that. So in all the SIFs that we access, intend to launch under SIF, we will be having daily liquidity. We will be giving you daily NAVs. The fee structure will be always similar to that of mutual funds. So all in Sir, all, sorry to interrupt you. Can we continue in both languages, if जी in English language? तो क्या हो रहा है कि म्यूचुअल फंड्स में जो आपके एडवांटेजेस है वो एडवांटेजेस तो आपके पास रहेंगे ही, साथ में आपको एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिल रहे हैं. क्या वो फीचर्स है? वो फीचर्स मेनली इन टर्म्स ऑफ आप कैसे हेजिंग कर सकते हो पोर्टफोलियो का. सो फॉर एग्जांपल, आप में से काफियों ने एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स बेचे होंगे. नाउ देयर इज वन लार्ज बैलेंस्ड एडवांटेज फंड इन विच Uh, हाँ जी. okay, sir, you can continue. सो देयर इज अ लास्ट बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, हमारा नहीं, एक कॉम्पिटिटर का, जहाँ पे वो लोग काफी कवर्ड कॉल सेलिंग करते हैं. Now, my understanding is आपका audience would be comfortable with covered calls. Covered call is nothing but you have the stock and then you sell the call on it. तो म्यूचुअल फंड्स में आप कवर्ड कॉल कर सकते हो, बट ओनली अप टू 15% ऑफ स्टॉक्स. तो अगर आपका पोर्टफोलियो 1000 करोड़ का है और लेट्स से उसमें आपने 800 करोड़ के स्टॉक्स चलाए हुए हैं, तो 15% ऑफ 800, विच इज अराउंड 120 करोड़ नंबर, आप उस पर कवर्ड कॉल चला सकते हैं. SIF में ऐसा कोई लिमिट नहीं है. SIF में चाहे तो आप पूरे पोर्टफोलियो पे भी कवर्ड कॉल चला सकते हैं. म्यूचुअल फंड में आप इंडेक्स ऑप्शंस सेल नहीं कर सकते हैं. सो आप बैंक निफ्टी कॉल या निफ्टी कॉल या निफ्टी पुट या बैंक निफ्टी पुट आप सेल नहीं कर सकते हैं. आप 15-20 साल पीछे जाओगे, 2007, 2008, 2008 तक आप इंडेक्स लेवल ऑप्शंस बेच सकते थे, बट 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद ये बंद हो गया. सो ये सब ऑप्शंस, ये सब स्पेसिफिकेशंस SIF में हैं, जो कि म्यूचुअल फंड में नहीं है. बिकॉज ऑफ विच जो रिस्क रिटर्न प्रोफाइल आपको मिलेगा इन्वेस्टर को SIF में, वो बेटर रहेगा. आपने ये भी सुना होगा कि अनहेड शॉर्ट पोजीशंस आप ले सकते हैं SIF में. सो व्हाट आर अनहेड शॉर्ट पोजीशंस? सो अनहेड शॉर्ट पोजीशंस वुड बी, मान लीजिए आपके पास लेट्स से 70 करोड़ आपके पास स्टॉक्स है. अब अगर उस पोर्टफोलियो में फॉर एग्जांपल आपके पास आईसीआईसीआई बैंक नहीं है, तो म्यूचुअल फंड में उस आईसीआईसीआई बैंक फ्यूचर्स या आईसीआईसीआई बैंक कॉल आप बेच नहीं पाएंगे. Whereas in SIF, if you don't have the underlying, मान लीजिए आपके पास एक कोर पोर्टफोलियो है, उसमें एक पर्टिकुलर स्टॉक नहीं है, फिर भी उस स्टॉक का फ्यूचर या उस स्टॉक का कॉल या उस स्टॉक का ऑप्शन आप बेच सकते हैं. दैट इज अ बिग additional thing for the fund manager. सो इन शॉर्ट अगर आपको बताना हो तो म्यूचुअल फंड में जितना आप हेजिंग कर पाओगे
वो सॉरी, एसआईएफ में आप जितना हेजिंग कर पाओगे वो म्यूचुअल फंड में जो हेजिंग अलाउड है उससे काफी ज्यादा एडवांस्ड, काफी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है। सो इसलिए जितने भी हाइब्रिड फंड्स आप देख रहे हैं म्यूचुअल फंड साइड में, उसमें रिटर्न्स बीट करना मुश्किल नहीं होगा अगर आप सिमिलर फंड सिमिलर स्ट्रेटजी एसआईएफ में चला रहे हैं। सो दिस स्लाइड विल गिव यू अ फर्दर insight into the differences between the multiple categories. म्यूचुअल फंड में आप उसको म्यूचुअल फंड स्कीम्स बोलते हैं, पीएमएस में उसको पोर्टफोलियो बोलते हैं। यहाँ आपका नोमेनक्लेचर चेंज हो जाएगा, उसको हम लोग इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी कहेंगे। ये सभी ने डिफाइन किया हुआ है। और अगर आप टिकट साइज भी देखेंगे, टिकट साइज पीएमएस और एआईएफ से काफी कम है। सो ये 10 लाख रुपए हैं और ये 10 लाख एट अ पैन लेवल अक्रॉस एसआईएफ स्ट्रेटजीज है। इसका मतलब है कि कोई एआईएफ, कोई एसआईएफ, कोई लेट्स से एएमसी हाउस अगर 4 एसआईएफ स्ट्रेटजीज चला रहा है, तो आप जरूरी नहीं है कि आप चारों में 10 10 10 लाख डालें। आप एक में 4, दूसरे में 3, तीसरे में 2, चौथे में 1 डालोगे तो 4+3+2+1 वो भी 10 लाख हो जाता है। सो ये एडवांटेज है एसआईएफ में। टैक्सेशन बहुत बड़ी बात है, टैक्सेशन विल बी सेम एज म्यूचुअल फंड्स। व्हाई डू आई से दैट? आप में से बहुतों ने ध्यान दिया होगा कि ये जो एसआईएफ रेगुलेशंस आए ना, ये गजेट ऑफ इंडिया में आए हुए हैं। नाउ गजेट इज अ वेरी सीरियस डॉक्यूमेंट इन विच पार्लियामेंट्री एक्ट्स लाइक सीए, एनआरसी, वो गजेट में पब्लिश होते हैं। गजेट में ये आया हुआ था और गजेट में फर्स्ट पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि एसआईएफ विल बी अ म्यूचुअल फंड। इसका मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड के जो भी रूल्स है वो एसआईएफ पे एप्लीकेबल होंगे। और ये तो आपको पता ही होगा कि म्यूचुअल फंड के टैक्स रेट्स डिफरेंट है बिकॉज पार्लियामेंट ने एक स्पेशल एक्ट पास किया हुआ है। सो दैट इज द रीजन कि एसआईएफ का टैक्सेशन भी म्यूचुअल फंड टैक्सेशन के सेम ही रहेगा। विच मीन्स अगर पोर्टफोलियो में 65% प्लस स्टॉक्स है तो उसका ट्रीटमेंट इक्विटी टैक्सेशन वाला होगा। अगेन फी इसमें आप परफॉर्मेंस फी और वो सब चार्ज कर नहीं पाएंगे बिकॉज ये म्यूचुअल फंड के ब्रॉडर फ्रेमवर्क में आता है। इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि आप हेजिंग कर सकते हो प्लस अनहेज शॉर्ट्स चला सकते हो, जो कि म्यूचुअल फंड में लिमिटेड अलाउइंग है। पीएमएसएस में तो कर ही नहीं सकते हो, बहुत ही लिमिटेड। एआईएफ में कर सकते हो बट एआईएफ में टैक्सेशन 40% है। सो यहाँ पे लास्ट लाइन में आप देखोगे कि एक्सपोजर एसआईएफ में 100%, एमएफ और पीएमएस में भी 100% है। पर यहाँ पे क्या है ना कि जो आप हेज कर रहे हो उसके एक्सपोजर में काउंट नहीं कर रहे हैं। सो अगर आपके पास लेट्स से हिंदाल्को स्टॉक है और हिंदाल्को के सामने अपने अगर हिंदाल्को फ्यूचर्स बेच दिया तो वो एक्सपोजर में काउंट नहीं होगा इस केस में। तो इन्हीं कारणों के चलते आप देखेंगे कि लोग बहुत ही एक्साइटेड है एसआईएफ को लेके, क्योंकि एसआईएफ में आप काफी सोफिस्टिकेटेड हेजिंग कर पाओगे। और जैसे मैं आपको बताया, 3 कैटेगरीज, एक है इक्विटी ओरिएंटेड, दूसरा है डेट, थर्ड इज हाइब्रिड। इक्विटी के अंदर में उन्होंने 3 सब कैटेगरीज दिए हुए हैं: इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड, इक्विटी X100 लॉन्ग शॉर्ट फंड, इक्विटी सेक्टर रोटेशन लॉन्ग शॉर्ट फंड। सो फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि 80 एंड 80% आप स्टॉक्स एंड इक्विटी इक्विवेलेंट्स में रखें, उसके बाद आपको जो करना है करें। सेकंड में भी यही बोल रहा है कि 80% आप स्टॉक्स में रखें बट वो स्टॉक्स टॉप 100 में नहीं होने चाहिए, दो स्टॉक्स शुड बी एक्स टॉप 100। और थर्ड में बोल रहा है कि 80% हैज टू बी अक्रॉस 4 सेक्टर्स जिसमें आप सेक्टर रोटेशन कर सकते हैं। सो ये 3 इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम्स है। हाइब्रिड में 2 हैं। फर्स्ट एक एसेट एलोकेटेड टाइप है। इसका क्लोजेस्ट इक्विवेलेंट मैं खोजूंगा तो आपको मैथ की तरफ जाना पड़ेगा, मल्टी एसेट फंड जिसमें कुछ कमोडिटीज भी है। सो ये एक्टिव एसेट एलोकेटेड लॉन्ग शॉर्ट फंड में आप कमोडिटीज, डेट और इक्विटी तीनों कर सकते हैं। हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड थोड़ा बैलेंस्ड एडवांटेज फंड और बैफ और अग्रेसिव हाइब्रिड के तरफ है। इसमें इक्विटी और डेट ही है। सो ये 3 स्कीम्स आपको सेबी ने अलाउ किए हुए हैं। विद इन देम देयर आर 3 सब स्कीम्स। इसमें कैच बस यही है कि सेबी बोल रहा कि जितने भी सब स्कीम्स है ना, एक एएमसी एक ही सब स्कीम में लॉन्च कर पाएगा, विच मीन्स एक्सेस एएमसी टोटल 3+2+2 7 स्कीम्स लॉन्च कर पाएंगे और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज लॉन्च कर पाएंगे। हम 10 15 20 स्कीम्स लॉन्च नहीं कर पाएंगे। सो इक्विटी के अंदर में हम 3 ही स्कीम्स लॉन्च कर पाएंगे, डेट के अंदर में हम 2 कर पाएंगे और हाइब्रिड के अंदर में हम 2 कर पाएंगे। सो इसीलिए एक एएमसी मैक्सिमम हाइब्रिड और इक्विटी मिला के 5 ही लॉन्च कर सकता है। हाइब्रिड, इक्विटी और डेट मिला के 5+2 7 लॉन्च कर पाएंगे। जिसके चलते क्या होगा ना कि एएमसीज को बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा अबाउट द स्कीम्स दे लॉन्च, क्योंकि अगर आपने 5 लॉन्च कर दिया फिर आपके ऑप्शंस खत्म हो गए, उसके बाद आप स्कीम लॉन्च नहीं कर पाओगे।
सो इसीलिए थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा कि आपको क्या लग रहा है कि मार्केट में किस पर्टिकुलर थीम या स्कीम का डिमांड है, एंड अकॉर्डिंगली एएमसीज विल हैव टू रिएक्ट। सो एक्सेस क्या कर रहा है ये मैं आपको बता सकता हूँ। एक्सेस शुरू में दो स्कीम लॉन्च कर रहे हैं। द फर्स्ट स्कीम हम लोग जो लॉन्च कर रहे हैं वो इक्विटी लॉन्ग शॉर्ट फंड है, और फिर एक दूसरा स्कीम लॉन्च करेंगे हाइब्रिड लॉन्ग शॉर्ट फंड में। सो हमने डिसाइड किया है कि दो स्कीम्स लॉन्च करेंगे। वन ऑफ द स्कीम्स, इवन इफ यू कॉल इट इक्विटी या हाइब्रिड, उसका ऑब्जेक्टिव विल बी टू गिव स्टेबल रिटर्न्स। उसमें हम लोग बोलेंगे कि हम लोग आर्बिट्राज, डेट और शॉर्ट टर्म, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, इनके कंपैरिजन में रिस्क चलाएंगे, बट हमारे रिटर्न्स उससे मत सुपीरियर होंगे, और टैक्सेशन इक्विटी टैक्सेशन होगा। सो रिसेंटली 2-3 साल में जो पैसा आर्बिट्राज में जा रहा था, हमें लगता है कि उस सेगमेंट में काफ़ी पैसा शिफ्ट करेगा, और हम लोग उस पर्टिकुलर फंड में इंडस्ट्री लीडर्स बनना चाहते हैं। सो वो एक फंड है। दूसरा फंड जो हम लोग लॉन्च करेंगे वो इक्विटी ओरिएंटेड होगा, जिसमें हम लोग बोलेंगे कि जैसा मार्केट जा रहा है उससे ऊपर साइड में आपसे ज़्यादा देंगे, और जब मार्केट गिरेगा तो हम लोग मार्केट से कम गिरेंगे। सो ये दूसरा फंड है जो हम लोग लॉन्च करने वाले हैं। एज ऑफ नाउ हम लोग दो ही फंड लॉन्च कर रहे हैं इक्विटी और हाइब्रिड स्कीम्स में। हम लोग 5 या 6 या 7 लॉन्च नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम तो एनएफओ करेंगे। सो जब आप एनएफओ करते हो तो सेल्स वाले काफ़ी प्रेशर में होते हैं, और पॉसिबल नहीं है कि आप एक टाइम में 4-5 एनएफओ साइमल्टेनियसली लॉन्च करो। तो शुरू में हम दो ही लॉन्च करेंगे, फिर बाद में मार्केट देख के कि किसमें कितना डिमांड है, बाकी स्कीम्स भी हम लॉन्च करेंगे। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पैन लेवल में, जैसे मैंने आपको बताया, एक इन्वेस्टर अक्रॉस मल्टीपल स्कीम्स इन्वेस्ट कर सकते हैं 10 लाख से ही। तो उस 10 लाख को आप तोड़ के एक स्कीम में 7, एक स्कीम में 3, तो टोटल 10 हो गए, ऐसा कर सकते हैं आप। आपके पास SIP, SWP, STP, जो भी नॉर्मल फीचर्स हैं, वो सारे अवेलेबल रहेंगे। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि ब्रांडिंग अलग होना है। सो इसका मतलब क्या है कि उस फंड का नाम एक्सिस एसेट मैनेजमेंट लॉन्ग शॉर्ट फंड नहीं होगा। उस फंड का नाम ABC लॉन्ग शॉर्ट फंड होगा। नीचे लिखा रहेगा पावर्ड बाय एक्सिस एसेट मैनेजमेंट। ये सेबी का एक रिक्वायरमेंट है, बिकॉज सेबी वांट्स इट टू बी वेरी क्लियर टू इन्वेस्टर्स दैट दिस इज नॉट अ म्यूचुअल फंड बट अ वेरिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड। सो इसलिए ब्रांडिंग डिफरेंट होगा। अभी हमने सेबी को अप्लाई कर दिया है। इन द नेक्स्ट 2 or 3 days हमारे पास वो अप्रूवल्स, वो परमिशंस आ जाएंगे। सो वंस वी हैव द अप्रूवल्स एंड परमिशंस इन प्लेस, वी विल बी वेरी वोकल इन एडवर्टाइजिंग। तो पूरी दुनिया को पता चलेगा कि ये जो फंड है ये एक्सिस का ही फंड है। और क्योंकि SIF में अलग नाम चाहिए होता है, अलग ब्रांडिंग चाहिए होता है, इसलिए एक्सिस ने ये नए नाम से फंड्स, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज लॉन्च करे हुए हैं। सब्सक्रिप्शन रिडेम्पशन फ्रीक्वेंसीज, सेबी ने एएमसी पे छोड़ा हुआ है कि वो डेली देना चाहते हैं, कि वंस अ वीक देना चाहते हैं, कि वंस अ मंथ देना चाहते हैं, या क्लोज एंडेड रखना चाहते हैं। वो ऑप्शनैलिटी सेबी ने म्यूचुअल फंड्स एएमसीज के पास छोड़ा हुआ है। बट हमने डिसाइड किया है कि हम लोग डायरेक्टली म्यूचुअल फंड के ईज और कन्वीनियंस से compete करेंगे। सो जहाँ भी म्यूचुअल फंड डेली लिक्विडिटी दे रहा है, हम भी उसको मैच करेंगे। सो जितने भी हमारे इक्विटी और हाइब्रिड स्कीम्स हैं, उसमें हम लोग लिक्विडिटी डेली रखेंगे। सो इन्वेस्टर कैन कम इन whenever he or she wants to, investor can go out whenever he or she wants to. Money will not get locked in the process. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कभी कभी क्या होता है ना कि आप पैसा दे देते हैं और वो मनी 3 years के लिए लॉक हो जाता है। परफॉर्मिंग क्रेडिट में कभी कभी 3 साल के लिए, 2 साल के लिए, कभी कभी 5 साल के लिए पैसा लॉक हो जाता है। जितने भी स्कीम्स हम लोग इक्विटी और हाइब्रिड में चलाए उसमें वो नहीं होगा। डेट में अगर हम लोग कुछ लॉन्च करें तो हो सकता है कि वी कैन आस्क फॉर अ लॉक इन, बट फिलहाल हमने वो डिसाइड नहीं करा है। सो ये बहुत ही टेक्निकल एस्पेक्ट है। मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको दिखाया था कि यहाँ आप देखिए कि हम लोग काफ़ी कुछ कवर कॉल कर सकते हैं, नेट शॉर्ट्स ले सकते हैं, इंडेक्स ऑप्शंस बेच सकते हैं, अनहेड शॉर्ट्स ले सकते हैं, और इसमें हेजिंग काउंट नहीं होता है। सो इस पॉइंट पे हमने काफ़ी देर बात की थी कि ग्रॉस एक्सपोजर 100% ही रहेगा। ग्रॉस एक्सपोजर में हेजिंग काउंट नहीं होता है। सो ये कौन से हेजिंग काउंट नहीं होते हैं उसको ऑफसेट्स बोलते हैं। सो फॉर एग्जांपल आपके पास अगर हमने सोचा कि बेहतर होगा कि अगर हम कुछ एग्जांपल्स देके आपको समझाएं, बिकॉज आपके ऑडियंस में भी बहुत लोग थोड़े टेक्निकल ओरिएंटेड होंगे। सो मान लीजिए आपके पास 10 करोड़ स्टॉक्स है, उसके सामने अगर आपने 7 करोड़ फ्यूचर्स शॉर्ट करे, तो वो 7 करोड़ फ्यूचर्स एक्स्ट्रा एक्सपोजर नहीं होता है।
और ये ऑफसेटिंग एकदम आर्बिट्राज फंड्स की तरह हो जाता है फिर। तो टोटल आपका एक्सपोजर 10 करोड़ रहेगा, क्योंकि वो 7 करोड़ ऐड नहीं होता है। 10 - 7 = 3 करोड़ भी नहीं होता है, बिकॉज 10 करोड़ के आपने स्टॉक्स खरीद लिए ना। सो इट इज मैक्सिमम ऑफ स्टॉक्स एंड फ्यूचर्स ऑफ कॉल सोल्ड। सो सेकंड एग्जांपल में भी वही है, आपने स्टॉक्स के सामने कॉल्स बेच दिए, तो आपके पास 10 करोड़ स्टॉक्स है, आपने 8 करोड़ कॉल बेच दिए, तो एक्सपोजर वही 10 करोड़ ऑफ स्टॉक्स रहेंगे। अब मान लीजिए सेकंड एग्जांपल में आपके पास 10 करोड़ ऑफ स्टॉक्स थे और आपने 12 करोड़ के कॉल अगर बेच दिए होते, तो एक्सपोजर फिर 12 करोड़ का होता। सिमिलरली थर्ड एग्जांपल, अगेन जैसे फर्स्ट एग्जांपल में स्टॉक्स और फ्यूचर्स शॉर्ट था, और सेकंड एग्जांपल में स्टॉक्स और कॉल्स शॉर्ट है, थर्ड एग्जांपल उसका एक वेरिएशन है। स्टॉक्स की जगह अगर आपने फ्यूचर्स ले लिए और उसके सामने अगर आपने कॉल्स बेच दिए, तो ये कवर्ड कॉल की तरह ही हो जाता है और आपका एक्सपोजर भी लिमिट हो जाएगा। वो 8 करोड़ का जो आपने कॉल्स बेचा हुआ है वो ऐड नहीं होगा। और अगेन अगर आपने स्टॉक के सामने में पुट बाय कर लिए हैं, तो वो पुट बाइंग की तरफ हो जाएगा। सो ऐसे ही वी कैन शेयर दिस पीपीटी विथ यू, और इसमें आप दूसरा ऑफसेट्स देख सकते हैं। हमने ये भी सोचा कि ये बेटर होगा आपके ऑडियंस के लिए अगर हम आपको एक एग्जांपल देके समझाएं। सो मान लीजिए टोटल पोर्टफोलियो का साइज इज 1000 करोड़। उसमें मान लीजिए आपने 700 करोड़ स्टॉक्स में डाल दिए हैं, आपने कवर्ड कॉल 250 दिए हैं, अनहेज्ड कॉल्स अगर आपने 150 करोड़ दिए हैं, हेज फ्यूचर्स अगर आपने 100 बेचे हैं, और अगर अनहेज फ्यूचर्स आपने 50 करोड़ बेचा है, तो इसमें एक्सपोजर खाली 90% या 900 करोड़ ही है। एक्सपोजर 700 प्लस 250 प्लस 150, जो कि 1100, प्लस हेज फ्यूचर्स शॉर्ट 100, 1200, प्लस अनहेज फ्यूचर्स सोल्ड 50, 1250 नहीं है। क्यों? क्योंकि इक्विटी के सामने आपने कवर्ड कॉल बेचा हुआ है, तो वो 700 प्लस 250 नहीं होगा। वो 700 और 250 मिला के उसका एक्सपोजर 700 ही रहेगा। उसके ऊपर आपने अनहेज्ड कॉल्स बेचे हैं, वो ऐड हो जाएगा। सो फर्स्ट थ्री मिला के 700 प्लस 150 इक्वल टू 850 हो जाएगा। उसके बाद आपने हेज फ्यूचर्स बेचे हैं, वो भी ऐड नहीं होगा, बिकॉज उसके उसने आप वो फ्यूचर्स आपने कोर के सामने बेचा हुआ है। तो 850 के सामने जो अनहेज फ्यूचर्स आपने सोल्ड किया हुआ है वो ऐड हो जाएगा। तो 850 प्लस 50 900 बन के आपका एक्सपोजर 90% बनेगा। सेकंड एग्जांपल में अगेन फर्स्ट में आपने कवर्ड कॉल बेचा है, वो ऐड नहीं होगा, बट जो आपने अनहेज कॉल्स बेचा है वो ऐड हो जाएंगे। सो फर्स्ट थ्री रोज के एक्सपोजर होंगे 700 प्लस 200 इक्वल टू 900। उसके बाद जो आपने हेज फ्यूचर्स बेचे हैं वो ऐड नहीं होगा, बट फिर जो आपने अनहेज फ्यूचर्स बेचे हैं वो ऐड हो जाएगा 900 को। सो एक्सपोजर आपका बन जाएगा 700 प्लस 200 प्लस 125 इक्वल टू 1025, विच इज मोर देन 100%। तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। कुछ लोग को ये लग रहा होगा कि आप 100 करोड़ के पोजीशन ईयू में 102 का पोजीशन क्या ले सकते हो। आप वो पोजीशन खड़ा तो कर सकते हो, बट सेबी अलाउ नहीं करेगा। खड़ा आप कर सकते हो क्योंकि फ्यूचर्स में आप मार्जिन मनी पे काम करते हो। वो 200 करोड़ पोजीशन के लिए आपको 200 करोड़ कैश नहीं चाहिए, आप उसको 25-40 करोड़ पे भी चला सकते हैं। सो इसलिए हमने दो एग्जांपल्स भेजे इन विच वन इज अलाउड पोर्टफोलियो, सेकंड वन इज नॉट अलाउड। एंड देन लाइक म्यूचुअल फंड्स आपको रिस्क बैंड भी देने पड़ेंगे, कौन सा लो रिस्क है कौन सा हाई रिस्क है। सो इट विल बी क्लियर कि कौन सा स्ट्रेटजीज ऑन द लोअर साइड रिस्क वाइज और कौन सा स्ट्रेटजीज ऑन द हायर साइड रिस्क वाइज। So this is the short presentation which we wanted to share with you. I just stop here. I think I've taken 15-20 minutes of your time. Happy to stop here and take any questions that you may have. Uh, थैंक यू सर। जी। अब वक्त है क्वेश्चन एंड आंसर राउंड का। मैं सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना क्वेश्चन एक एक करके चैट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। I would like to request all the participants to ask their questions one by one in the chat box. So there is a question from Abid Patel ji that हम्म, this looks like a huge returns investment. What are the हम्म। historical returns of such funds? देखिए हम लोग दो फंड लॉन्च कर रहे हैं। उसमें एक तो एब्सोल्यूट रिटर्न फंड है, जिसमें हम लोग बोल रहे हैं हम लोग आर्बिट्राज फंड्स को हैंडसमली बीट करेंगे बाय अराउंड 150-200 बेसिस पॉइंट्स। सो एब्सोल्यूट नंबर आप पकड़ के चलिए करीब 9-10% होगा पोस्ट फी। एंड ये एक फंड के लिए है जिसमें हम लोग आर्बिट्राज से compete कर रहे हैं। एंड द अदर फंड इन विच वी आर सेइंग दैट वी विल टेक मोर रिस्क, उसमें द फर्स्ट फंड हम लोग डेट के साथ compete कर रहे हैं, आर्बिट्राज के साथ compete कर रहे हैं। सेकंड फंड जिसमें हम लोग इक्विटी के साथ compete कर रहे हैं, उसमें हम लोग अल्फा पे फोकस करेंगे। और करीब करीब आप पकड़ लीजिए वी विल गिव यू समवेयर अराउंड 120% ऑफ इक्विटी पार्टिसिपेशन ऑन द वे अप। और जब मार्केट नीचे जा रहा होगा तो हम लोग आपको 70-80% में ही लिमिट कर देंगे लॉस को। सो ये दो फंड्स हम लोग लॉन्च करने का सोच रहे हैं
with these return profiles. टैक्सेशन, हाँ जी, टैक्सेशन और एक सवाल वो भी था एनआईएसएम सर्टिफिकेशन पे। यस, जो भी इस फंड को बेच रहे हैं उनको एनआईएसएम सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा। और टैक्सेशन जो हम फंड्स चला रहे हैं उसमें एमएफ टैक्सेशन आएगा, एमएफ इक्विटी टैक्सेशन आएगा, बिकॉज इन ऑल द फंड्स अंडर इक्विटी एंड हाइब्रिड हम लोग एटलीस्ट 65% स्टॉक्स रखेंगे ही। The kind of returns on such one. So there's a question from Abhijit only that should the exposed calls be visible to the public or not? And what kinds of returns on such schemes? नहीं समझा, क्या सुनाई नहीं दिया, फर्स्ट वाला बोलिए। शुड Just a moment. Should the exposed calls be visible to the public about मतलब पोर्टफोलियो दिखेगा कि नहीं, आपको ये बोल रहे हो? like the investment plans? नहीं, क्वेश्चन क्या है कि पोर्टफोलियो आपको दिखेगा कि नहीं ऑन लाइव बेसिस, ये क्वेश्चन था क्या? Uh, Abid sir, I cannot understand your question. Can you please write it again? So there is another question from Praveen ji that is it required an ISM 13 certificate or not? जी, ये सर्टिफिकेशन चाहिए होगा आपको। Okay. So there is a question from Pratham ji that how much absolute return it is expected? हम लोग बोल रहे हैं अराउंड 9 to 10%, नो नेगेटिव, जो लो रिस्क स्ट्रेटजी है, नो नेगेटिव मंथ्स, नो नेगेटिव क्वार्टर्स। एंड उस पर्टिकुलर फंड में हम लोग आर्बिट्राज और शॉर्ट टर्म डेट से compete कर रहे हैं Okay. विथ डेली लिक्विडिटी एंड इक्विटी टैक्सेशन। Okay. There is a question from Sanjeev ji that taxation in case of 50% equity and 15% debt exposure. नहीं नहीं, हम लोग 50% डेट रखेंगे ही नहीं ना, हम लोग तो 65% एटलीस्ट स्टॉक्स में रखेंगे ही, तभी तो हम लोग को इक्विटी एमएफ टैक्सेशन मिलेगा। There is a question from Praveen ji that if any client invests rupees 10 lakh in in an AUM and the value goes down, the client has to invest more or not? नो, द क्लाइंट डजंट हैव टू इन्वेस्ट मोर, बट आप फिर पार्शियल रिडेम्पशन नहीं कर पाओगे। सो 10 लाख का अगर 9 लाख हो गया, आप उसमें से 2 लाख निकाल नहीं पाओगे, फिर आपको निकालना है तो आपको पूरा 9 लाख निकालना पड़ेगा। पर अगर 10 लाख 14 लाख बन गया तो आप 4 लाख निकाल सकते हैं। Okay. So there's a question from Abhijit that if the fund is taking an option call, will it be known to public or not? नहीं सर, इट वोंट बी नोन टू पब्लिक, क्योंकि हमारे पोजीशंस बहुत फास्ट चेंज होंगे। जब ऑप्शंस में पोजीशन लेंगे ना, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो पोजीशन हम 4-5 दिन होल्ड करें, सो इसीलिए पब्लिक को पता नहीं चलेगा। Okay. And is there a lock-in period in this? No, we don't intend to have any lock-in period for equity and hybrid SIFs. अगर हम लोग डेट SIF स्टार्ट किया तो डेट SIF में कुछ और होगा, बट इक्विटी और हाइब्रिड SIFs में हमने डिसाइड किया कि एक्सेस AMC लॉक इन नहीं रहेगा, लॉक इन एग्जिट लोड होगा, लॉक इन नहीं रहेगा। So, sir, there is a last question from Pratham ji that in which category of SIF we are expected to receive the maximum returns? नहीं, रिटर्न्स तो आपको जो सेकंड वाला कैटेगरी बोला है उसी में आएंगे, क्योंकि एब्सोल्यूट में तो पोस्ट फी अराउंड 9-10% ही टारगेट कर रहे हैं। तो रिटर्न्स तो सेकंड वाले प्रोफाइल में ही ज़्यादा आएगा, बट उसमें रिस्क भी ज़्यादा है। इसमें फॉर एग्जांपल हम लोग आपको बोल रहे हैं कि नेगेटिव क्वार्टर होएगा ही नहीं, नेगेटिव मंथ्स भी ना हो, बट उसमें फिर वो हो सकता है। मोस्ट लाइकली कमीशन सिस्टम, आई एम नॉट द ऑथराइज्ड पर्सन, मोस्ट लाइकली सेम रहेगा, एंड एग्जिट लोड भी हम लोग म्यूचुअल फंड के साथ ही रखेंगे, सो इट विल नॉट बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम स्टैंडर्ड म्यूचुअल फंड के एग्जिट लोड्स। Praveen ji, regarding commission system, you can connect with your RM. They will give you the brief about it. And there is a question from Vijay Bogaji that what is the expected exit load? Like 1% in MF for 365 days or? हाँ, वैसे ही रहेगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि 5% एग्जिट लोड कर दिया है, 2.5% कर दिया, ऐसा जो एमएफ में है उस वही रखेंगे ब्रॉडली। Okay. So I think so. That's it for the question, and we don't have more questions currently. So thank you, sir. Yeah, thank you so much for having us. Do let us know if you have any follow-up questions.
Thank you to all the Happy to- participants also for joining with us.